Good evening, students. How are you? I hope you all are very fine at your home and you are taking all precautionary measures. Okay, you are taking all precautionary measures. Okay, which was instructed by the government of India and your concerned state government and also your elders. आपके जो बड़े हैं उनकी बात को माना है आपको. Okay, so today we will start our third application, okay, on dimension analysis. So because first two application we have already completed. Or the third application is what? That is to establish the relation between the dimensional to establish the relation between the given physical quantities. Okay, so we start with that. Okay, so that is what our third application is, to establish the relation between given physical quantities. Okay, this application is well understood by taking some examples. Okay, हमको सीधा डायरेक्ट एग्जाम्पल लेना पड़ेगा और फ्रॉम दैट एग्जाम्पल वी विल फाइंड आउट दैट व्हाट आर द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज, द डिपेंडेबिलिटी ऑन वन अनदर, ओके, एंड हाउ यू हैव टू क्रिएट द फॉर्मूला बेस्ड ऑन इट. उस पर कैसे आपको फॉर्मूला बनाना है. ओके, सो वी फॉर दिस वी विल टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ओके, दैट इज थ्रू विच वी कैन वेल अंडरस्टूड बाय. ओके, सो वी विल टेक वन एग्जाम्पल फॉर दिस वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ सिंपल पेंडुलम. So it will be understood to you. So the question is, the simple pendulum whose time period is depend upon the string of pendulum and the acceleration due to gravity. Okay, so we have given a simple pendulum whose time period is depend upon the length of the string of the pendulum and the acceleration due to gravity. So it means what, that the time we have given three. Okay, we have given here three physical quantities. हमारे पास में यहाँ पे कितना physical quantities है? हमारे पास यहाँ पे तीन physical quantities है. नंबर वन जो आपके पास है वो क्या आपके पास है, that is T, the time period. सेकंड क्या आपके पास में L और थर्ड क्या आपके पास में acceleration due to gravity. Okay. According to this given question, this time period is depend upon this time period is depend upon acceleration due to gravity and the length of pendulum and acceleration due to gravity. ये जो time period है ये आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, length of pendulum and acceleration due to gravity. इसी चीज को हमको क्या करना है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, सिंपल. ओके, सो वी विल स्टार्ट दिस. We rewrite it in mathematical form. That is what the dependability of the time period on length of the pendulum and acceleration due to gravity. अच्छा, इसका जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को इसी हिसाब से आपको लिखना है जिस ऑर्डर के अंदर आपको क्वेश्चन में दिया. यदि लेंथ याद दिया आपका पहले आ रहा है तो आपको लेंथ को पहले लेना है. एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यदि बाद में आ रहा है तो उसको आपको बाद में लिखना है. उसके सीक्वेंस को चेंज नहीं करना. ओके, डोंट चेंज द सीक्वेंस. ओके, सो अकॉर्डिंग to the problem, okay, according to given problem, you have to write what? The time period depend upon length, okay, and time period depend upon acceleration due to gravity, right? So this is your question number one. Equation number one. This is equation number two. So we write down in mathematical form the dependability of the time period on the length of the pendulum and the acceleration due to gravity. Now we have to write this L and G in terms of MLT form. Okay,
So MLT form and they must have some, this MLT have some power. Okay, MLT have some power. So that's why we take here A and here it will be B. Okay, now by using these two equations we can also write it. Okay, also we can write, हम इसी दो को देते इक्वेशन को फिर दोबारा हम इसमें लिख सकते हैं E is proportional to L, A and G. Or you can also write P equals to K times of L, A, G. Okay, it is like this. Okay, so we will put this equation number 3. Okay, now after this, इसके बाद में हमको क्या करना है? इसके बाद में हमको बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन की जो दोनों साइड है, लेफ्ट हैंड साइड एंड आरएचएस साइड, राइट हैंड साइड, उसको दोनों साइड में हमको एमएलटी फॉर्म के अंदर इसका डायमेंशन फॉर्मूला लेना पड़ेगा. यू राइट डाउन द डायमेंशन फॉर्मूला. ओके, सो वी विल प्रोसीड विद दिस. ओके, इसको हम करते हैं यहां से स्टार्ट. सो इट विल बी, बिकॉज हियर वी हैव ओनली टी, दैट इज द टाइम. मास नहीं है, लेंथ नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे m0 L0 T1. ओके, इसके अंदर हम क्या करेंगे? K टाइम्स, इसके अंदर हम लिखेंगे, क्योंकि हमें एमएलटी फॉर्म में लिखना सर है, यहाँ पर सिर्फ L है, ये क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा m0. ओके, एंड दिस इज L1 एंड टाइम भी नहीं यहाँ पे, तो T हो जाएगा आपका 0. ओके, और पावर ये हो गया इसका. फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे G है, G क्या? एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, तो इसमें क्या होगा? मास आपका हो जाएगा m0, L1 हो जाएगा. एक्सीडेंट ड्यू क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो T -2 हो जाएगा. सिंपल. नाउ ये तो आपका यही रहेगा सेम, m0 L0 T1. ठीक है, हमको पावर को अंदर लेना है, तो पावर क्या होगा? पावर टू पावर विल बी मल्टीप्लाई A इंटू B हो जाएगा. ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 0 इंटू A, दैट इज 0, L1 इंटू A, दैट इज A. ओके, और 0 इंटू A अगेन इट इज 0. फिर हम इसको लेंगे यहाँ, फिर 0 इंटू B, 0 को B से मल्टीप्लाई करें तो वापिस 0 आएगा. L1 इंटू B होगा तो वापिस क्या हो जाएगा? B हो जाएगा. और T -2 इंटू B इज योर -2B. ठीक है, नाउ K टाइम्स. अब आप देखिए, अब आपको सिर्फ M लेना है. M ये लेना है, एक ये में हो गया, दो में हो गया, दोनों में पावर क्या? 0 है, तो M क्या हो जाएगा? M की पावर क्या हो जाएगी? 0. अब नेक्स्ट क्या आएगा? L आ गया है, एक ये हो गया, पावर क्या? A हो गया, B है, तो बेस सेम होगा तो पावर विल बी एडेड. ओके, सो क्या हो जाएगा? L A प्लस B, A प्लस B. इसमें से क्या हो जाएगा? T का क्या हो जाएगा? -2B. ओके, यहाँ पे क्या आपके पास में? m0 L0 T1. नाउ comparing power of MLT, M, L and T, both sides of equations, side of above equation. मतलब ये जो above equation, this equation, इसके अंदर क्या करेंगे? MLT की जो पावर है उसको हम कंपेयर करेंगे. ओके, we will compare the power, means we have to equate it. ओके, हमको उसको इक्वेट करना पड़ेगा. तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? फॉर M, और M लीजिए, M के लिए लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS, तो दोनों साइड में क्या हो रहा है? 0 = 0 आ रहा है. ठीक है, तो ये दिस इज ऑफ नो यूज फॉर अस, इसका हमारे पास कोई यूज नहीं है. नाउ फॉर L के लिए लीजिए, देखिए ये L हो गया और ये हो गया, इसका पावर यहाँ A प्लस B, यहाँ 0 है, क्या हो जाएगा? 0 = A प्लस B हो गया. फिर हम क्या लेंगे? फॉर T लीजिए, तो T के लिए क्या होगा? T के लिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है? -2B, 1 = -2B. ओके, राइट. नाउ फ्रॉम हियर वी गेट व्हाट? इसे हम लिख रहे हैं क्या? B की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? -½ हो गया, -½ हो गया ना. B की वैल्यू इज -½ नाउ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A = -B. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका? ये B की वैल्यू क्या रहेगी? पुट हियर, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? +½ आ जाएगी, +½ ओके. सो दीज टू वैल्यूज A = ½ एंड B = -½ जो है, ये दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे इन दिस इक्वेशन. राइट, सो फ्रॉम दिस वी गेट द रिलेशन. तो ये रिलेशन हमारे पास में क्या आएगा? लेट अस सी.
Okay, so we have this equation is what? That is T equals to K times of L, A and G, B. ठीक है, ये था हमारे पास में A की और B की वैल्यू अभी निकाली है जस्ट। तो क्या थी आपके पास में? A की वैल्यू थी प्लस हाफ और B की वैल्यू क्या आपके पास में? माइनस हाफ। ओके, पुट इट वैल्यू हियर सिंपल। सो इट विल बी K टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा? L। एक वैल्यू क्या है? एक वैल्यू कितना होगा? प्लस हाफ। तो यहाँ हो गया हाफ। ओके, हाफ हो गई। यहाँ पे क्या हो गया? हाफ हो गया। और G की वैल्यू आपकी हो गई यहाँ पर माइनस हाफ। ठीक है, माइनस हाफ हो गई। तो क्या हो गया? K टाइम्स ऑफ ये हो गया आपके पास में हाफ का मतलब रूट, अंडर रूट। ओके, ये ऊपर पावर हाफ इसका मतलब अंडर रूट। इसको वैसे लिखेंगे L अपॉन G। T इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ अंडर रूट L अपॉन G। Okay, this is K. K is what? Is a proportionality constant. Okay, the value of this K is defined. It is already defined. Okay, and K की जो value होती है वो experimentally prove होती है. Okay, and which is set by CGSS और वो जो set करता है और इसकी K की जो value होती है वो होती है आपकी 2 pi. कितनी होती है? 2 pi होती है. It is experimental value. Okay, इसको we cannot derive with the help of the calculation. It is experimental value. And this value will be given to you. K की वैल्यू आपको दी होगी तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा P इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, राइट? 2 पाई L अपॉन G। यदि आपको K की वैल्यू 2 पाई नहीं दी हुई है मान लो उसमें, इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन जैसे हमने दिया था, वैल्यू आपको दी नहीं है मान लो, इफ इट इज नॉट गिवन तो यू लीव इट अप टू दिस, इट इज ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। So it depends. So we find the dependability of these three given physical quantities. That is time period, length of the pendulum, and the exponent to gravity. So this is the dependability on this, and we create this formula. So this is a very beautiful explanation. We can ourselves find. We can ourselves set the relation between the given physical quantities. Okay, thank you so much. And we in the next class we'll take some more good important examples. इसके ऊपर हम लेंगे और उनको हम one by one we will do it, we'll solve it. Okay, thank you so much. Please take care of yourself.